अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि दो डाकू लाहौर में ऐसे भी रहे हैं जो गाड़ियों में डकैती की वारदात करते रहे। शहजाद उर्फ मोटा गैंग जो है CIA पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने शहर लाहौर में गाड़ी में सवार होकर डकैती की बड़ी वारदातें की। लाखों रुपया लोगों से लूटा और लाखों रुपए से लोगों को महरूम किया। पुलिस की हिरासत में है। मुलजमान से पूछते हैं कि किस तरह से ये डकैती की वारदात करते थे और इससे पहले इनका क्या कारोबार था। क्या नाम है अभी तुम्हारा? शहजाद। शहजाद कितने का रहने वाला है? लाहौर का जी। लाहौर का रहने वाला है जी। अच्छा, तो कितनी उम्र है तेरी? मेरी सर 52-53 साल। 52-53 साल? जी। 50 साल तो ज़्यादा उम्र हो गई। तो किन्ने अरसे तो डकैतियां कर रहे हैं? तकरीबन साल होया सी सर। अच्छा, सिर्फ साल होया सी? जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? मैं बाहर ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦੁਬਈ। ਦੁਬਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜੀ। ਤੇ ਦੁਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਮੁxtਲਿਫ ਵਕਤਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ, 20 ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਰਹੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2 ਜੀ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਨੋਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਬਸ ਸਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 70-80 ਲੱਖ 90 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਅਸਲਾ ਪਸ਼ਾਵਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਸ਼ਾਵਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਰ ਯਾਰ ਪੇਜ ਤੂੰ ਕੋਡ। ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੱਸ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਨਫਰਿਦ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਮੁxtਲਿਫ ਫਿਲਮਾਂ ਸਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਕਨ ਸਨ ਤੇਰੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2 ਜੀ। ਅੱਛਾ, 2 ਹੀ? ਤੀਸਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਉਹ ਸਰ ਐਸੀ ਵਲੰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਵਲੰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ? ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਸਰ ਹੈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 14-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 14-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਇਹੀ ਕਿ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਅਸਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਸੀ? ਵੱਡੀ ਗਨ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਗਨ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ 44 ਸੀ। 44 ਬੋਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਸੀ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰਨਾ ਸੀ, ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਸਰ। ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕੋਈ ਫੇਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਲੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਜੀ ਦੇ ਸਰ, ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? 7-8 ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 7-8 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 7-8 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14 ਲੱਖ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 32 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 32 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ, ਕੋਈ 15 ਲੱਖ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 70-80। 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ? ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਕਾਲਜ ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਬਾਉਂਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਾਇਰ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਬਸ ਸਰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਔਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਗਲਤ ਨਤੀਜਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਗਲਤ ਨਤੀਜਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, 11 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹ
ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀ ਜੀ, ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ। ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਸੀ ਦੋਸਤ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੁਬਈ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿਆ ਵੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੇ ਦੁਬਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾ ਵਾਪਸ? ਜੀ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਪਕੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਸੀ? ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੋਨੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਜੋ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਬਸ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਦੁਬਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਰਹੀ ਐਸੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਟਿਕਟ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਅਸਲਾ ਵਸਲਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਸਰ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੀ। ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ ਨਈਮ। ਜੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਟੋਬੇ ਦੇ। ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਸਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਨਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਬੈਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਨਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਰਾਚੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਰ 36 ਸਾਲ। 36 ਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ। 13-14 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ 2-4 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ? ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? 44 ਸੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੈਪਨ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਚ ਗੋਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਸਰ
ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ- ਉਤਰਦੇ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ? ਸਰ। ਮੈਂ 40% ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ 40% ਤੇ ਇਹ 60% ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਸਰ। ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 14 ਲੱਖ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸਨ? ਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? 6-7 ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਰ। 7 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਘਰ ਤੇਰਾ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਸਰ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਤੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹੋਣੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਹੇ ਆ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਰ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। 3 ਭਾਈ ਸੀ, ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਾਲਦਾ ਅਲੱਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹੈ? ਬੋਲ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਕਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਰ। ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਸਰ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਸਰ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ? ਮਾਫੀ ਸਰ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ? ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਸਰ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਬਸ ਸਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸ ਨਾਲ। ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ? ਸਰ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ? ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਬੋਲ। ਬਸ ਸਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲਾਲਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, 60% ਤੇ 40% ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ 40% ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 60% ਤੇਰਾ। ਜੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਖਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਹੈ? ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ? ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਰਦੇ ਸੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਫਿਰਦੇ ਸੋ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ? ਰੋਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਰ ਵਾਰਦਾਤ। ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਰੋਜ਼ ਸੋ? ਨਹੀਂ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1-2 ਦਫਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਲੋਰੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੋਰੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਸਦਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਵੇ? ਬਸ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਰ, ਮਾਲਟਨ ਵਗੈਰਾ, ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ। ਮਾਰਟਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਸੋ ਲੋਕੀ ਘਬਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬਸ ਸਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਤੂੰ ਐਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸਨ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਡਕੈਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ? जी सर, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला को माफ़ी मांग रहे और अपनी आखिरत वास्ते भी। ਤੇ ਉਤੋਂ ਤੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ? ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵਾਲੀ ਪਲਾਨ? ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਅੰਜਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂ ਵੀ, ਕਾਤਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਰ, ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਸਰ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ- ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜੀ ਸਰ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਏਗੀ जी सर, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ दे रहा हूँ? बस सर गलती हो गई। गलती हो गई। ये थे जी वो मुलजमान जो शहर लाहौर में डकैती की अनोखी वारदातें करते थे। शहजाद उर्फ मोटा गैंग जो है गाड़ी में सवार होकर डकैती की वारदात करते थे और 60 और 40% इन्होंने जो है वो रखी हुई थी परसेंटेज कि 60% जो है शहजाद उर्फ मोटा खुद लेता था और इसका साथी जो है
उसे 40% जो है उस डकैती की वारदात में हासिल होने वाली रकम का हिस्सा देता था। एक्चुअली जब हमने जब इनको अरेस्ट किया ना, तब ये इस पोजीशन में थे, गाड़ी की नंबर प्लेट ये चेंज कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। इनका जो मकसद था उस दिन वो पूरा नहीं हुआ, तो ये वापसी के लिए जब भी ये वारदात के लिए आते थे, तब भी वो किसी भी सोसाइटी में जब एंटर होते थे तो ये नंबर प्लेट गाड़ी की चेंज करते थे, और जब अंदर आते थे फिर दोबारा चेंज करते थे। ठीक है। तब जब आउट होने लगे हैं, निकलने लगे हैं, इन्होंने नंबर प्लेट चेंज करने की कोशिश की है। ठीक है। उसी दौरान सडनली हम 3 मौके पर थे, तो हमारी नफरी भी पीछे से आ रही थी। हमें पता चला कि 2-4 सेकंड अगर हम वेट करते तो ये निकल पड़ने थे। हम तीनों ने फिर अपनी एफर्ट करके तो हमने इनको वहाँ पे जाके दबोच लिया। बाद में हमने सीसीटीवी कैमरा और जो बैंक की वीडियोस है उसमें देखा कि ये गाड़ी हमें पीछे ट्रैक कर रही थी। हम यूँ ही तकरीबन 2-3 गार छोड़ के ऑफिस के बाहर जा रहे थे। कल्टस गाड़ी थी वाइट कलर की, साथ 3 लोग और भी थे। तो इन्होंने यकदम आगे आके गन पॉइंट पे आके रोक लिया। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने चाबी निकाली गाड़ी से। ठीक है। हमने 2 जगह पे कैश रखी हुई थी। हमारी टोटल कैश थी 22 लाख रुपया। 15 लाख पीछे था और 7 लाख आगे था, क्योंकि हमने देने होते हैं तो बैंक से ही वो अलग-अलग कर लिए थे। ठीक है। ठीक है। तो हमने सेफ सिटी में ये भी देखा कि हम पहले गए हैं मॉल टाउन ब्रांच। ठीक है। ठीक है, उधर से पैसे नहीं मिले। ठीक है। ये गाड़ी उधर ही थी। ठीक है। उधर से ये इनको सिग्नल मिलता है, या इनका जो मुखबर है इनको बताता है कि जी फ़लाँ बैंक के बाहर चले जाएं, उधर से बंदे का चेक कैश हो गया। ठीक है। हम उधर से निकल के और ऑफिस जा रहे थे, तो इन्होंने एक बंदे के पास शॉट गन थी और एक के पास पिस्टल था। तो उस टाइम तो बड़ा खौफनाक मंजर था ये सब कुछ देख के। और ऊपर से आपकी कहते हैं अगर रुपया तो एक भी गुम हो जाए तो बड़ा दुख होता है। तो इतनी बड़ी अमाउंट थी। शहजाद उर्फ मोटा गैंग को जो गिरफ्तार किया है, 2 ये पुलिस अफसरान हैं सीआईए के। जब वारदात करने के लिए वो बिल्कुल तैयार थे और ऐन उस वक्त जो है पुलिस मौके पे पहुंची और दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब ये बताएं कि ये जो शहजाद उर्फ मोटा है, इसको कैसे गिरफ्तार किया और ये बिल्कुल रेडी थे एक वारदात नहीं करने के लिए? बेसिकली हमने इनके पीछे काफ़ी अर्से से, क्योंकि ऑलरेडी इनकी काफ़ी सारी वारदात हो चुकी थी, तो हमें इनके पैटर्न का आइडिया था कि ये बैंकों के बाहर ही वारदातें करते हैं। तो हमने ऑलरेडी वहाँ पे रैकिंग पे अपने बंदे लगाए हुए थे, लड़के लगाए हुए थे। हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक गाड़ी मशकूक है, तो जो इधर बैंक के अराउंड काफ़ी देर से ना मूव कर रही है। तो उससे रिलेटेड हमने वो गाड़ी की इन्फॉर्मेशन चेक की है, उसके सारे क्वाय वगैरह चेक किए, तो ये गाड़ी नंबर प्लेट भी फेक थी। हमारा जो शक था वो यकीन में बदल गया कि ये वही हैं। ठीक है। देन फिर ये इनको हमने राउंड अप किया और वहाँ से हमने इनको अरेस्ट किया। अच्छा, नईम साहब आप लीजिए माइक और आप ये बताएं कि जब आपने इनको गिरफ़्तार किया, जब ये मौके पे मौजूद थे, वारदात करने की तैयारी कर रहे थे, तो इनके पास असला भी था, तो इन्होंने कोई मज़ामत की कोशिश की हो? ये एक्चुअली जब हमने जब इनको अरेस्ट किया ना, तब ये इस पोजीशन में थे, गाड़ी की नंबर प्लेट ये चेंज कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। इनका जो मकसद था उस दिन वो पूरा नहीं हुआ, तो ये वापसी के लिए जब भी ये वारदात के लिए आते थे, तब भी वो किसी भी सोसाइटी में जब एंटर होते थे तो ये नंबर प्लेट गाड़ी की चेंज करते थे, और जब अंदर आते थे फिर दोबारा चेंज करते थे। ठीक है। तब जब आउट होने लगे हैं, निकलने लगे हैं, इन्होंने नंबर प्लेट चेंज करने की कोशिश की है। ठीक है। उसी दौरान सडनली हम 3 मौके पर थे, तो हमारी नफरी भी पीछे से आ रही थी। हमें पता चला कि 2-4 सेकंड अगर हम वेट करते तो ये निकल पड़ने थे। हम तीनों ने फिर अपनी एफर्ट करके तो हमने इनको वहाँ पे जाके दबोच लिया। तब इनका असला वगैरह जो गाड़ी में था। ठीक है। अच्छा जी, माजिद साहब आप माइक लीजिए। माजिद साहब आप ये बताइएगा कि जब इनको गिरफ़्तार किया, बिल्कुल उस वक्त जब ये एक डकैती की वारदात करने की तैयारियों में थे, एतराफ़ भी करते हैं मुलजमान, तो इनसे असला बरामद हुआ और बाकी चीज़ें जिस तरह से रिकवरी हुई है, कुछ पैसे रिकवर हुए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इनके मौके पर इनसे मिल गई या बाद में रिकवर हुआ? अच्छा सर, इस तरह है कि मौके से तो इनसे रिकवरी नहीं हुई, रिकवरी बाद में इन्होंने करवाई है, चूँकि जो पीछे इन्होंने वारदातें की थी
उनकी जो भी रिकवरी थी, पैसे थे इनके पास, ये इन्होंने बाद में बरामद करवाए हैं। ठीक है। अच्छा नईम साहब, ये बताएं कि मुलजमान कितनी वारदातों का इतराफ़ जो है वो कर चुके हैं, और अक्सर ये होता है कि जो इस तरह की डकैती करने वाले लोग होते हैं वो पैसा खर्च कर लेते हैं, तो अभी इनसे कुछ बरामदगी होना बाकी है। सामान जो ये मास्क पहनते थे, वीडियो इनकी यकीनन वो सामने आई, असला तो बरामद हो गया, गाड़ी भी बरामद हो गई। जी सिल्क जो गाड़ी वो इस्तेमाल करते थे वो गाड़ी भी बरामद हो गई, वेपन भी बरामद हो गया। अभी इनका रिमांड चल रहा है, कुछ कैश हमने बरामद कर लिया है, बाकी जो अभी बकाया है वो भी इंशाल्लाह बरामद करेंगे। दाद उर्फ मोटा गैंग जो डकैती की वारदातें करते थे, एक इसी तरह की वारदात गार्डन टाउन के इलाके में होती है। 22 लाख रुपए की डकैती की वारदात होती है। जिनके साथ वारदात होती है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि किस तरह इन्होंने डकैती की वारदात की, पैसे इतने ज़्यादा कहाँ से लेके आ रहे थे, कुछ अंदाज़ा है कि इन्होंने रैकी की थी? माइक ऊपर कर लीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी मेहनत की कमाई हमें मिल गई। उसके बाद मैं ख़ास तौर पे मदर साहब हैं, सब इंस्पेक्टर CIA डिफेंस, उनका शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने पहले दिन से हमारे साथ तावन किया। मतलब कि जो हम भी खुद भी वर्किंग करते रहे हैं क्योंकि मैं लायर हूँ। ठीक है। और जो ही हम मेज़ान बैंक बरकत मार्केट से पैसे लेके निकले तो बाद में हमने CCTV कैमरा और जो बैंक की वीडियोज़ हैं उसमें देखा कि ये गाड़ी हमें पीछे ट्रैक कर रही थी। हम जो ही तकरीबन 2-3 गार छोड़ के ऑफिस के बाहर जा रहे थे, अल्टस गाड़ी थी वाइट कलर की, साथ 3 लोग और भी थे, तो इन्होंने यकदम आगे आके गन पॉइंट पे आके रोक लिया। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने चाबी निकाली गाड़ी से। ठीक है। हमने 2 जगह पे कैश रखी हुई थी। हमारी टोटल कैश थी 22 लाख रुपया, 15 लाख पीछे था और 7 लाख आगे था, क्योंकि हमने देने होते हैं तो बैंक से ही वो अलग-अलग कर लिए थे। ठीक है। ठीक है। तो हमने सेफ सिटी में ये भी देखा कि हम पहले गए हैं मॉल टाउन ब्रांच। ठीक है। ठीक है। उधर से पैसे नहीं मिले। ठीक है। ये गाड़ी उधर ही थी। ठीक है। उधर से ये इनको सिग्नल मिलता है या इनका जो मुखबर है इनको बताता है कि जी फ़लाँ बैंक के बाहर चले जाएं, उधर से बंदे का चेक कैश हो गया। ठीक है। हम उधर से निकल के और ऑफिस जा रहे थे तो इन्होंने, एक बंदे के पास शॉट गन थी और एक के पास पिस्टल था। तो उस टाइम तो बड़ा खौफनाक मंजर था ये सब कुछ देख के। और ऊपर से आपकी कहते हैं अगर रुपया तो एक भी हो गुम हो जाए तो बड़ा दुख होता है, तो इतनी बड़ी अमाउंट थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब पैसे अच्छा, मिल गए। ये जब आपके पास डकैती के वारदात कर रहे थे, आपके पास आए तो इन्होंने नकाब किया हुआ था और दोनों के हाथ में असला था? जी दोनों के हाथ में असला था। नकाब उस टाइम तो नहीं करते थे इनके, क्योंकि ब्लैक पेपर गाड़ी की थी, फ्रंट पे भी इन्होंने ब्लैक किए हुए थे, फेक नंबर प्लेट लगाई हुई थी, क्योंकि वो जब बाद में वेरीफाई हुई तो पता चला कि वो तो बंदा जो नंबर प्लेट लगाई है वो सरगोदा किसी जगह का। उससे वो आईओ ने सब कुछ पता किया तो उसने कहा मैं गाड़ी सेल कर दी हुई है। वो फिर बाद में पता चला कि ये तो तकरीबन 8-10 वारदातें कर चुके हैं। इसी तरह होंडा सिविक है, इनके पास है, नंबर चेंज करते हैं और गायब हो जाते हैं। ये थे जी एक मुकदमे के मुद्दई जिसमें मुलजमान ने डकैती की 22 लाख रुपए की वारदात की, पुलिस की हिरासत में है और यकीनन अब इनका लूटा हुआ जो दौलत थी, सामान था और कैश था वो इनको वापस मिल जाएगा। कोई फेक गाड़ी की नंबर प्लेट लगाता है तो CCTV जो है कैमरास जो है सेफ सिटी के उस पर इन्फॉर्म कर देते हैं मुतलका पुलिस को कि ये फेक नंबर की गाड़ी है, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये क्या करते थे ऐसा कि इनको पकड़ा भी ना जा सका और सेफ सिटी के कैमरों को भी ये चक्कर देते रहे? ये इस तरह है कि जी ये पाक व्हील और जो OLX पे गाड़ी जो हमें सेल करने के लिए लगा देते हैं लोग, तो वो अक्सर अपना नंबर प्लेट भी शो कर देते हैं। तो आपके प्रोग्राम की वसात से मैं उनको भी ये कहूँगा कि वो जब पाक व्हील या OLX पे अपनी गाड़ी सेल करते हैं या परचेज, तो इस चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा करें, अपना नंबर ना शो किया करें गाड़ी का। और अगर कोई कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले कि जी आपका नंबर नहीं है तो क्या नंबर है, तो आप थोड़ा उसको इस चीज़ में थोड़ा एहतियात बरतें। तो ये वहाँ से नंबर ये पिक करते थे। अब इनके जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये तकरीबन OLX से 10 से 12 नंबर प्लेट बना लेते थे।
ये बना के पास रख लेते थे और सेम उसी मॉडल की, अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने वारदात करनी है होंडा सिविक पे 19 मॉडल में, तो 19 मॉडल की ही ये नंबर प्लेट लेते थे और फिर ये उधर यूज़ करते थे। वारदात से पहले भी चेंजिंग करते हैं और वारदात करने के बाद भी चेंज कर देते हैं। तसद्दुक़ हुसैन खोखर हैं जी, डिफेंस CIA के इंचार्ज हैं। लाहौर में डकैती की जो बढ़ती हुई वारदातें हैं उसमें एक गैंग ऐसा था जो 2 रुकनी गैंग था और गाड़ियों के ऊपर बड़े आतिशी असले के साथ जो है डकैती की वारदातें करता था। पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, CIA ने। तफसील उनकी तसद्दुक़ साहब से जानते हैं कि किस तरह से गिरफ़्तार हुआ और कितनी वारदातें जो हैं वो मुल्ज़मान अब तक कर चुके हैं और कितने मुकदमात हैं जो उनके ख़िलाफ़ दर्ज हुए हैं। तसद्दुक़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। तसद्दुक़ साहब बड़ा मुतहरिक गैंग था, सोशल मीडिया पे भी और CCTV फुटेज के ज़रिए भी देखा कि डकैती की ये गैंग जो है वारदातें करता था। इसके रुकन सिर्फ 2 ही हैं सर? बिल्कुल सर, ये 2 रुकनी गैंग है सर। ये होंडा सिविक पे वारदात कर रहे थे। इनको 1 साल हो गया था। फुटेज भी हमारे पास आ रही थी। हमारी टीमें काफ़ी CIA की भी इस पर वर्किंग कर रही थी। CCB साहब ने, DIG साहब ने इस पर बड़ा सख्ती से नोटिस लिया हुआ था। तो अब हमें एक पैटर्न, हमने इसको फॉलो करते रहे हैं कि जी, क्योंकि ये बड़े शातिर किस्म के थे। ये एक वारदात में 10 से 11 दफ़ा नंबर प्लेट चेंज करते थे। फिर इनकी जो गाड़ी के जो शीशे हैं इन पे भी ये फेक एक कवर लगा देते थे और वारदात के बाद उसको उतार देते थे। तो ये बिल्कुल आंख मचोली की तरह ये वारदात करते थे कि जी हम किसी तरह पकड़े ना जाएं। तो जब हमने इस पे वर्किंग कर रहे थे तो हमें इनके पैटर्न को भी थोड़ा पहले समझा हमने टेक्निकली जो है। फिर हमने अपने जो मुखबिर ख़ास होते हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन हमने काफ़ी कलेक्ट की इस गैंग के बारे में। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि जी आज इसी तरह के मैदान बैंक है डिफेंस के एरिया में, वहाँ पे ये रैकी कर रहे हैं। तो फिर हमने फौरी टीम तश्कील दी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। अच्छा तसद्दुक़ साहब, ये 2 लोग थे और गाड़ी पे अक्सर बात ये होता है कि गाड़ी पे डकैती की वारदात नहीं होती, मोटर बाइक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी क्या वजह थी कि ये गाड़ी पे ही सिर्फ डकैती की वारदात करते थे कि लोगों को शक ना हो, या कोई और वजह थी? ये इस तरह है कि जी जब हमने इनसे इंटेरोगेट की है तो ये कह रहे हैं कि जी हम पहले तो गाड़ी से बाहर नहीं निकलते। तो ये टारगेट इस तरह करते थे कि अगर मिज़ान बैंक है, मिज़ान बैंक में जो है वो एक जो भी इन्वेलप लेके निकलता था उस पर उसको मोनोग्राम को देखते थे उस बैंक के, तो वो उसके पीछे लग जाते थे। और जब वो एक गली में जाते थे तो सुनसान जो जहाँ पे आमदोरफ्त कम हो तो वहाँ पे उस गाड़ी को रोक लेते थे और उनके साथ वारदात कर लेते थे। ठीक है। अच्छा तसद्दुक़ साहब, ये भी बताइए कि लाहौर भर में इन्होंने तकरीबन कितनी वारदातें की हैं और उसमें कितनी रकम लूटी है? जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में 10 वारदातें इन्होंने मानी है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और रिकवरी भी हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर कोई इससे के अलावा भी वारदात हुई तो हम उसको ज़रूर उसको करेंगे फॉलोअप और इनको जो कानून के मुताबिक सज़ा भी दिलवाएंगे। अच्छा तसद्दुक़ साहब, जो गाड़ी का इस्तेमाल ये करते थे, जिस तरह से आपने बताया कि सफ़ेद रंग की एक गाड़ी थी, वो गाड़ी चोरी की थी और जो नंबर प्लेट्स तब्दील करते थे उन नंबर प्लेट्स को फेक होती थी, या शहर में तो ये होता है कि अगर कोई फेक गाड़ी की नंबर प्लेट लगाता है तो CCTV जो है कैमरास जो है सेफ सिटी के उस पर इन्फॉर्म कर देते हैं मुतलका पुलिस को कि ये फेक नंबर की गाड़ी है, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये क्या करते थे ऐसा कि इनको पकड़ा भी ना जा सका और सेफ सिटी के कैमरों को भी ये चक्कर देते रहे? ये इस तरह है कि जी ये पार्क व्हील और जो OLX पे गाड़ी जो हमें सेल करने के लिए लगा देते हैं लोग, तो वो अक्सर अपना नंबर प्लेट भी शो कर देते हैं। तो आपके प्रोग्राम की वजह से मैं उनको भी ये कहूँगा कि वो जब पार्क व्हील या OLX पे अपनी गाड़ी सेल करते हैं या परचेज, तो इस चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा करें, अपना नंबर ना शो किया करें गाड़ी का। और अगर कोई कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले कि जी आपका नंबर नहीं है तो क्या नंबर है, तो आप थोड़ा उसको इस चीज़ में थोड़ा एहतियात बरतें। तो ये वहाँ से नंबर ये पिक करते थे। अब इनके जो अब इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये तकरीबन OLX से 10 से 12 नंबर प्लेट बना लेते थे। ये बना के पास रख लेते थे और सेम उसी मॉडल की, अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने वारदात करनी है होंडा सिविक पे 19 मॉडल में, तो 19 मॉडल की ही ये नंबर प्लेट लेते थे और फिर ये उधर यूज़ करते थे। वारदात से पहले भी चेंजिंग करते हैं और वारदात करने के बाद भी चेंज कर देते हैं।
तो वो जो हमारे सेफ सिटी हैं, सेफ सिटी में तो वो जब नंबर प्लेट उसको रीड करते हैं तो वो सेम मॉडल शो होता है, तो वो उस टाइम जज नहीं हो पाता। तो ये बड़े शातिर किस्म के थे ग्रो, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने इनको पकड़ लिया है और इनके जो वारदातें हैं वो हम उसको भी ट्रेस आउट करके उसको फाइनल आउट करेंगे। अच्छा, ये बताइए इनसे असला कौन सा बरामद हुआ है? सीसीटीवी में तो हम देखते हैं कि बड़ी गन इनके पास होती है, असला किस तरह का इनसे रिकवर हुआ है? और हाँ जी बिल्कुल, एक इनसे पिस्टल बरामद हुआ है और से एक राइफ़ल बरामद हुई है जो 44 बोर है आई थिंक। तो उसके मुताबिक उसके भी हम जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी करेंगे उसके। ठीक है, तो सदुक साहब ये भी बताइएगा कि ये दोनों जो मुलजमान हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, आपस में ये कोई रिश्तेदार हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि इससे पहले भी ये कभी गिरफ़्तार हुए हैं या इनका कोई CRO रिकॉर्ड था? जी बिल्कुल, इसमें जो शहजाद नामी है उसका पहले भी ये 2011 में भी पकड़ा गया था, इससे मिलती जुलती वारदातों का जो करता था। फिर ये दुबई चला गया, दुबई से फिर ये कहता है कि मैं कोरोना के दिन में वापस आया हूँ। फिर एक था नईम है, वो भी इसको वहाँ दुबई में ही इसका इंट्रोडक्शन हुआ। उन्होंने प्लानिंग वहाँ पे की, कुछ ये कहते हैं कि जी हमने मूवीज़ भी देखी थी कि जी किस तरह की वारदात करते हैं, हम पकड़े ना जाएं। तो काफ़ी ये शातिर थे। जो मेन इसका जो सरगना है शहजाद उर्फ मोटा जो जिसको कह रहे हैं गैंग, तो वो उस सारा वही प्लान करता था, वही गाड़ी का करता था बंदोबस्त, और वेपन वगैरह भी उसी ने ही सारे बंदोबस्त किया हुआ था। अच्छा, इसका शहजाद उर्फ मोटा गैंग इस नाम से ये मशहूर थे। मोटा मतलब कोई ये फ़िज़ीक में मोटा है थोड़ा, और ये जब 2011 में पहले भी पकड़ा गया तो उस टाइम इसकी सेहत मोटी थी, तो इस वजह से फिर जो हमारा जो CR होता है उसमें हम उसकी सारी उसकी फ़िज़िकली अपीयरेंस हम उसको शो ऑफ करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसमें दो ही हैं इस गैंग के रुकन। ये मेरा ख्याल है काफ़ी चालाकी के साथ किसी दूसरे या तीसरे बंदे को शामिल नहीं करते थे, और जो इन्होंने लूटी हुई रकम थी वो कहाँ खर्च करते थे? क्या इन्वेस्टिगेशन में आपके पास मज़ीद ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे से आप शेयर कर सकते हैं? जी, इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो हमें बातें सामने आई हैं वो ये है कि ये खुद दुबई में कारोबार करता था, एक इसका बेटा भी दुबई में है, वहाँ पे भी ये उसको भी पैसे ये बेचता रहा है वारदात करने के बाद। तो वो हम उसका जो लीगल प्रोसीजर है उसको हम फॉलो अप करके उससे भी रिकवरी करवाएंगे। और जो दूसरा है वो है लिया का। लिया का वो ये इसके साथ दुबई में काम करता था, और जब कोरोना के दिन में ये भी वापस आ गया तो फिर कहते हैं कि जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने बयान दिया है कि जी हम तंग आ गए थे गुर्बत से, तो फिर हमने ये वारदातें करना शुरू की। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे जैसे जो एविडेंस आएंगे हम उसको मिसलों का हिसाब ना के अब जो कानूनी कार्रवाई होगी हम उसको करेंगे। तो सदक साहब, जिन लोगों के साथ इन्होंने डकैती की वारदातें की उनसे आपने रब्ता किया होगा, किस तरह के लोगों के साथ ये लूट मार करते रहे और किस नोयत के वो लोग थे? घर में हाउस रॉबरी भी इन्होंने कोई की है या सड़कों पर बैंक से निकलते ही वारदात करते थे? नहीं, ये बैंक से निकलने के वक्त जो पैसे लेके निकलते थे सिर्फ उन्हीं को टारगेट करते थे। एक हमारे पास मदई जो सामने आया उसकी बेटी की शादी थी, उसके पैसे रखे हुए थे उन्होंने बैंक में, तो उनके साथ ये वारदात हुई। फिर एक अच्छा, वो शादी करने के लिए वो जैसे माँ बाप पैसे बेटी के सेव किए हुए थे। अच्छा, वो वाली वारदात थी। हाँ जी, उनकी जो हमसे रब्ता हुआ तो उन्होंने हमें बताया कि जी उसकी बेटी की शादी थी, तो वो बड़े परेशानी के दिनों में ये गुजरे हैं जब इनके साथ वारदात हुई। फिर एक सामने जो आया है जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में, एक ने अपने वालिदैन के हज के पैसे जमा किए हुए थे, तो वो पैसे जमा करवाने के लिए वो लेके आया, तो उसके साथ भी उन्होंने वारदात की है। ये थे जी तसद्दुक हुसैन, डिफेंस के CIA इंचार्ज हैं, और इन्होंने मुलजमान को गिरफ़्तार किया जो शहर भर में इन्होंने लोगों के साथ बड़ी डकैती की वारदातें की, और बहुत ये मशहूर हुए। इनकी CCTV फुटेज जो है वो भी मंजर आम पर आती रही कि ये कौन सा गैंग है जो गाड़ी में डकैती की वारदातें करता है। पुलिस की ये CIA की खासकर बड़ी कार्रवाई है और इसे गिरफ़्तार कर लिया गया है, इन दोनों मुलजमान को। लोग जो है यहाँ पर वारदात करने के बाद या कोई भी कत्ल करने की वारदात के बाद दुबई फ़रार हो जाते हैं, लेकिन ये अपनी नोयत के मुनफरिद दो डकैत हैं जो वहाँ से दुबई से प्लान करके पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आकर डकैती की इन्होंने वारदातें की। और इस बात का भी इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने इतराफ़ किया कि ये फ़िल्में देखते थे और फिल्मी अंदाज में, नए अंदाज में इन्होंने डकैती की वारदातें लाहौर में की
और लोगों को लाखों रुपए से महरूम करते रहे। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने दिखाया कि शहर लाहौर में डकैती की अनोखी वारदात करने वाले 2 रुकनी गैंग को CIA पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस क्या कहती है, मुल्ज़मान क्या कहते हैं और किस तरह से ये डकैती की वारदात करते थे, मुकदमा मुद्दई क्या कहते हैं। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।